रिकॉर्डिंग पे लगा दिया. So I will recall this concept again, partial derivative and continuity. So a function may have partial derivative without being continuous. This concept we have discussed, partial derivative and continuity. So one example was there where the function may have partial derivatives without being continuous. इसका मतलब कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसके साथ हमें कुछ और चीज भी चाहिए अगर कंटिन्यूटी की डिमांड कर रहा है. वी आर डिमांडिंग कंटिन्यूटी तो ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉट सफिशिएंट, है ना. सम मोर थिंग वी विल रिक्वायर, दैट थिंग वी विल डिस्कस लेटर, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं दे शुड आल्सो कंटिन्यूअस. देन partial derivative should also continuous. If partial derivative exists and continuous, then the function will be continuous. Only existence of partial derivatives does not guarantee the continuity of the function. Okay. Or in support of this statement, we have an example. Example 8, page number 769. You have a function f(x, y) is equal to 0 when product is not 0 and it is 1 when x product is 0. इसका graph you can see, when product not 0 then it is 0. Product means x not 0, y not 0, means when your x axis and y axis are excluded then your fxy means z. इसे हम क्या लिखते हैं, z, fxy is z. तो आपका 3 dimension xyz, it is your E3, Euclidean space of dimension 3. So you have x axis, y axis, z axis. If I am taking this is y x z, तो ये पॉजिटिव साइड है. अगर मैं इसे डॉटेड कर दूं पीछे तो ये आपकी नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव. सो व्हेन योर xy is 0 then it is 1. तो xy 0 कब होगा भाई, when x 0 और y 0. That means when your point is on the x axis or y axis. In that case what is the value of z? z की वैल्यू क्या है उस केस में, 1 है ना. हाँ, तो 1. अब z is equal to 1 means you have either x0 or y0. So I can say कि when your point is on x axis तो y0 है तो उसकी इमेज ये हो गई. अब अगर पॉइंट y axis पे है तो ये आपका ही हो गया. इस तरीके से ये भी z is equal to 1 है, ये भी z is equal to 1 है, ये सब ये लाइन. And when xy not 0, xy not 0 means when your point in the xy plane here है ना, यहाँ पे यहाँ ये चारों प्लेन आपके xy प्लेन, then it is 0. 0 means what, कि point will be here only, जो point यहाँ है वो यहीं रहेगा. That means this is this portion. अगर मैं फोर्थ, this is the graph of this. ये क्लियरली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना. इसकी फिगर आपके बुक में बनी हुई है. तो यहाँ पर आपको शो करना था फाइंड द लिमिट ऑफ f. फर्स्ट पार्ट था फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 f of xy along y is equal to x. First point is this, xy tending to 0 along y is equal to x. क्या बनाते हैं, नॉन वेज, Okay, पनीर. नहीं सर आई थिंक किसी का माइक म्यूट कर दिया है. कुछ लोग पता नहीं क्यों माइक छोड़ देते हैं अपना, पता नहीं है कि माइक ऑन है या ऑफ है. क्लास से बाहर कर दूंगा मैं अगर किसी की आवाज आ रही होगी माइक ऑन हुआ तो. So along y is equal to x, so this is your line y is equal to x. You can see here, if I am taking this line, this line is your y is equal to x ground.
So if I am moving along this, so firstly I will put the value of fxy. So fxy has only two values. What? It has two values, 0 or 1. तो क्या होगा? This equal to how much? Limit xy tending to 0 0. So what about along y is equal to x? How much? Sir, 0. Eh? 0. 0. Zero. क्योंकि So y one. is equal to x पे One. आपके पास क्या है? You are here in the xy plane, so it will be 0. सर 1 सर होगा. ये 1 ही होगा, Eh? 1 ही होगा. क्यों? सर भाई सर दोनों इक्वल हो जाएंगे सर. हाँ लेकिन Y इक्वल हो और जाएंगे, x लेकिन 0 तो नहीं होंगे ना. इक्वल होने से क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर तो नॉन जीरो है ना, बोथ आर नॉन जीरो. अच्छा, बहुत आर नॉन जीरो. प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट. ओके. ओके सर. हाँ. So it was your first. Second part was prove that f is not continuous at the origin. So if you see the value, हमें प्रूफ करना है f is not origin. तो we know that along y is equal to x limit is 0. तो अगर लिमिट 0 आ रही है तो this should be the value of the function also. But you know what is the value of f0 0? f0 0 की वैल्यू क्या है? 1. So this is equal to 1, but it is not equal to this limit. इसके इक्वल नहीं है किस पाथ पे? along y is equal to x. So it is the definition of continuity. The value of the function should equal to the limit. So this implies that not continuous. ठीक? So it is not continuous. Third part was show that both partial derivatives del f. So 1 2 third part was show that fx and fy, and fx means del f over del x, fy means del f over del y, show that both exist at the origin. ये शो करना है. ओके. ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगा. तो हाउ यू विल फाइंड इट? एग्जिस्ट एट द ओरिजिन. तो फर्स्ट आई विल फाइंड del f over del x at 0 0 at the origin. So del f over del x means what? Your y fixed, है ना? Y is fixed, keeping y fixed. पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब पता है, del f over del x का मतलब y हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है. तो वी आर कीपिंग y फिक्स. तो y कहाँ? अब 0 0 पे निकालना है, इसका मतलब y को कहाँ फिक्स करना है? y की वैल्यू फिक्स हो गई आपके पास, है ना? x विल बी चेंजिंग. कीपिंग y फिक्स एट y इज इक्वल टू 0. अब y इज इक्वल टू 0 पे जब आप फिक्स करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fxy? So 1. 1 हो जाए, क्योंकि जैसे y 0 है तो प्रोडक्ट 0 मींस 1. So you can see here keeping y fixed at y is equal to 0, है ना? So सर ये then सिमिलर केस x पे भी वैलिड करेगा अगर x को फिक्स कर देंगे और x 0 हो अभी जाएगा. del f over del x की बात कर रहे हैं. Then fxy is equal to 1. अब आप जब del f over del x निकालेंगे at the point 0 0, so it will be coming what? 0, क्योंकि So यहाँ पे 0. similarly del f over del y at the point 0 0, keeping x fixed, कहाँ पे फिक्स कर दें? at x equal to 0. अगेन इट इज 0 है ना. अब x 0 का मतलब y एक्सिस है, तो फिर z इज इक्वल टू 1 है आपके पास. देन fxy is 1, so del f over del y. तो इसका मतलब क्या? देखो, both the partial derivative existing but function is continuous. So what more condition is required? That partial derivative should exist and continuous. So if both partial derivatives exist and continuous at some point x naught y naught, then fxy is continuous at x naught y naught, है ना? तो ये वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूटी और चाहिए हमें. यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस आ रही थी कि ये 0 है.
ठीक है, आगे इसको और देखेंगे हम अभी जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, तो वी विल सी दैट हाउ इट इज कमिंग। ठीक है यहाँ तक भी बोलिए स्टूडेंट। यस सर। yes sir, नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्या था, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इट वाज योर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, शॉर्ट में पीडी लिख रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव पीडी। so you have del 2 over f over del x2, or I can write fxx del 2 f over del x del y, इसको I can write fxy। similarly del 2 f over del y सर del x, इसको I can सर write। मुझे सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये जो आपने एफ एक्स एक्स लिखा है सर, ये एक साथ आएंगे या सर इसके नीचे आएगा सर? ये सिंबल सफिक्स कैसे में है, ये लिखेंगे एफ सफिक्स में है, नीचे सफिक्स में है, स्मॉल इसमें, ठीक है। एक्स? हाँ ये सफिक्स में होते हैं, स्मॉल बनाए मैंने, ऐसे नहीं बनाया, ये तो ओके फंक्शन का साइन होता है ना, इट इज नॉट दैट, ओके। दिस इज एट द सफिक्स। so these are second order partial derivative। then we have a mixed derivative theorem। this fx, अब fxy का मतलब क्या है, you have a function differentiating firstly with respect to y then x। जैसे fxy मान लो मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ले लूं, तो फिर if I want to find fxy, तो fxy का मतलब पहले सपोज करो मैंने y के टर्म में किया फिर x, तो fy इज हाउ मच 2y। अब इससे फिर x के लिए करा, तो fxy इज इक्वल टू 2, है ना। अब similarly if I am taking firstly with respect to x, so it will be 2x and then yx how much 2। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। द क्वेश्चन इज क्या, ऑलवेज दे विल बी इक्वल, क्या हमेशा ऐसा होगा कि इक्वल होंगे? तो इसके लिए वी हैव अ थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड द मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम, क्योंकि ये जो आपके एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स है दे कॉल्ड मिक्स्ड डेरिवेटिव। ये तो एफ एक्स एक्स है, ये एफ वाई वाई है, इसे हम एफ एक्स वाई को क्या कहते हैं, इट इज अ मिक्स्ड डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें एक्स है फिर वाई है, या पहले वाई फिर एक्स। तो यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि दे विल बी इक्वल। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया कि इक्वल आ गए, तो कब इक्वल होंगे, वी हैव अ थ्योरम द मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम, द मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम। ठीक, क्या कहती है, इफ एफ एक्स वाई and its partial derivatives fx, fy, fxy and fyx, है ना, क्योंकि मिक्स चाहिए हमें, तो इसलिए fx fy, तो ये यहाँ ये तो फर्स्ट स्टेप है ही आपका, fx fy तो निकालना ही होगा, फिर उससे क्या निकालेंगे fxy fyx, ये दो चाहिए, fxx fyy आई डोंट नीड, क्योंकि fxx fyy दे आर नॉट मिक्स डेरिवेटिव। तो इफ a function and its partial derivatives fx fy fxy fyx they are defined, फर्स्टली एक तो डिफाइंड होने चाहिए, है ना, डिफाइन का मतलब दे शुड एग्जिस्ट, डिफाइंड तो कहीं हो, डिफाइंड इन द डोमेन, जो भी आपको रीजन दिया हुआ है, जो भी फंक्शन का डोमेन होगा हम निकालेंगे, पहले डोमेन फंक्शन का क्या है उसमें डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन थ्रू आउट द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के कंटेनिंग द पॉइंट ए कॉमा बी, क्योंकि हम डेरिवेटिव कहाँ चेक करते हैं, एट अ पॉइंट, तो इस पॉइंट के रीजन पे सब जगह डिफाइन हो, एंड आर ऑल कंटिन्यूअस, और ये अगर साथ में कंटिन्यूअस भी हो, दिस इज थिंग के साथ साथ दे आर ऑल कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी, अगर ऐसा है देन दे विल बी इक्वल, देन योर एफ एक्स वाई ए बी विल इक्वल टू एफ वाई एक्स ए कॉमा बी, ठीक है। तो यू हैव टू चेक कि दे आर एग्जिस्टिंग एंड दे आर कंटिन्यूअस। तो हियर यू सी कि ये जो मैंने फंक्शन लिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज सिंपल पॉलिनोमियल, यू नो इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, ये हमेशा डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या है, द होल एक्स वाई प्लेन, है ना।
क्यों भाई स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. the domain is whole xy plane, सिंपल पॉलिनोमियल है ना। फिर हमने इसके डेरिवेटिव्स निकाले, देखे एफ वाई एफ एक्स, ये क्या है, इट इज अगेन डिफाइंड, क्योंकि क्या है ये सिंपल, इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल डिग्री 1, so it is again सर defined उसका सर everywhere. उसका डोमेन सर एक्स वाई प्लेन पे होगा तो सर रेंज सर इसकी जेड एक्सिस। हाँ, रेंज तो ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है, सारे अच्छा फंक्शन जी। मैं रियल वैल्यूड ही ले रहा हूँ आपके। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, इसकी इमेज जेड एक्सिस का मतलब कि इमेज इसकी एक रियल नंबर है ना। जो भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आपके R2 से R है ना। अब उसमें कोई डोमेन चेंज हो जाता है तो हम R2 से निकाल देते हैं, -0 वॉट एवर, डिपेंड करता है। इन जनरल आई हैव फंक्शन R2 to R, तो जो इमेज आएगी वो रियल नंबर होगा, है ना, जिसको आप जेड एक्सिस कह रहे हैं। यस सर ओके। हाँ, तो you have this. So here you can see that the partial derivative fy, fx, fxy, fyx, they are existing और continuous भी है ना, ये continuous भी है, हम check कर सकते हैं। So here that's why the value is coming equal. So if this thing happening then it is equal. I have an example where this will not equal, वहाँ continuity break हो रही होगी। वो example आपका इस book में नहीं था, from some other book I have taken this example just to explain this concept. Step function है x y x square minus y square upon x square plus y square। एक फंक्शन है कि when x y not 0, ओके, और अदरवाइज 0, ये फंक्शन डिफाइन है कि अगर x y नॉट 0 है तो इसकी वैल्यू ये है कुछ, और अदरवाइज इट इज 0। तो here you will see that here your fxy here fxy at the point 0 0, this will not equal to fyx 0 0। इस फंक्शन के अगर आप चेक करेंगे तो मिक्स डेरिवेटिव एट ओरिजिन विल नॉट इक्वल। इसे आप चेक कर सकते हैं कैसे आएगा इक्वल, ये तो यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालने होंगे। जैसे मुझे एफ एक्स वाई एट अ पॉइंट 0 0 निकालना है, तो एफ एक्स का फॉर्मूला तो आपको पता है। अगर मुझे एफ एक्स निकालना है 0 0 पे, बताइए तो क्या फॉर्मूला था इसका, याद है किसी को? चलो ए कॉमा बी अगर लिखता हूँ मैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब एफ एक्स का मतलब चेंज विल बी इन एक्स ओनली, है ना, X plus H. 0 प्लस एच, एक्स 0 है पॉइंट, plus H. 0 प्लस Yes, sir. एच कॉमा 0. कॉमा 0, क्योंकि y तो 0 पे फिक्स है आपका। a प्लस Yes, sir. एच माइनस एफ ए बी अपॉन एच, H. ये एफ एक्स था। और एफ वाई क्या था, एफ वाई 0 0 में लिमिट मैं यहाँ के ले लेता हूँ, के टेंडिंग टू 0, अब की बार एक्स इज फिक्स, चेंज इन वाई माइनस एफ 0 0 अपॉन के, है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया सर, कौन ये सा? वाला सर। अरे वही है, ये वाई वाला। में आपके चेंज इन वाई होगा बस, क्योंकि वाई निकाल रहा हूँ मैं, तो एक्स इज फिक्स, वाई चेंज इन वाई, तो 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 अपॉन। y के लिए तो हम y के लिए हम k ले लेंगे और x के लिए हमने h ले लिया सर। हाँ, वो तो एक नोटेशन है एच के, एच टेंडिंग टू 0 के टेंडिंग टू 0, यहाँ भी आप एच ले सकते हो, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट, हमने एच और के ले लिया है बस, सर हम ठीक है। a और b भी ले सकते हैं सर, अगर इन ए केस और बी कोई क्वेश्चन बेसिकली आया हम तो पॉइंट्स के लिए लेते हैं, यूज हम अच्छा। सब फिक्स नोटेशन, ए और बी को हम नॉर्मली पॉइंट से डिनोट करते हैं, और लिमिट्स को एच के एफ साइड आर डेल्टा इससे करते हैं, ठीक है, इसलिए एफ एफ एच के ले लिया। So its value will be what, fh comma 0, so its value is fh comma 0 minus f0 0, f0 0 तो आपका 0 ही हो गया है ना, क्योंकि ये गिवन है, अदरवाइज 0, तो it will be 0 upon h लिमिट
h tending to 0. So it will be coming, ये आएगा limit h tending to 0 f of h comma 0 upon h. This is the value of this, है ना. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो इसके लिए पहले मुझे अब s tending to 0 पे, here you can see that when this tending to 0, what I can take it here, वही वाला. you will have to take this, है ना, s tending to 0. लेकिन हमें अब इससे आगे जाके अभी हमें fx पे नहीं रुकना है, हमें तो fxy निकालना है बेसिकली. ओके, अभी निकालना है Yes, sir. fxy. यस, तो fxy के लिए क्या हुआ, अभी fx था. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड fxy at the point 0 0, so what you will take, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं, देखो जब आपका fx था तो यहाँ पर सिर्फ f लिया था. अगर मैं fxy को लिमिट k टेंडिंग टू 0 लूं अब, तो यहाँ क्या आएगा, fx सर एफ एच और के 0 प्लस के. नहीं 0 प्लस है, 0 सॉरी k ले रहे हैं ना हम. हाँ, तो 0 प्लस k. यस, यू आर राइट, हमने क्योंकि वो लिया है. तो क्या होगा यहाँ पे, fx सर लूंगा, h देखो और यहाँ पे 0 प्लस के. fx 0 कॉमा 0 प्लस k 0 प्लस के माइनस fx 0 0 अपॉन k, है ना. क्योंकि fxy निकालना था तो मैंने y किया, तो fx को यहाँ लिख दिया है इस तरीके से. इज इट क्लियर? सर वो h वाला कहाँ चला गया सर, उसमें x ये में तो h भी है. नहीं, ये तो अभी हमने इसे यहाँ अभी इसे यहाँ रखा है. अब मुझे इसका अगर fxy निकालना है तो fxy में क्या करेंगे, इसको अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे fx को, तो ये वैल्यू रखेंगे हम, k टेंडिंग टू 0. यहाँ पर सर- fx है, यहाँ fx आएगा. सर एक चीज और पूछ सर, ये जैसे कि आपने fxy निकाला था सर, अगर हम fyx निकालेंगे तब हम यूज करेंगे ना x को. नहीं, ये fxy में k टेंडिंग टू 0 लिया है तो x फिक्स है. अब मैं अगर fyx निकालूंगा एट द पॉइंट 0 0, तो व्हाट आई विल टेक, आई विल टेक h टेंडिंग टू 0. ठीक, इसका मतलब y को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x इज चेंजिंग, तो इट विल बिकम f ऑफ, अब यहाँ h टेंडिंग टू 0 लिया आपने तो यहाँ fy लिख देंगे बस. fy 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस fy 0 0 अपॉन h. Okay. ये तो आपके, अगर आप इसे यहाँ पे s लेते हैं तो यहाँ के ले लीजिएगा. वो तो डिपेंड कर रहा है कि आप पहले y के रेस्पेक्ट में मानना है इसे या x के. fxy को somebody में से कि I will differentiate with respect to y then x, somebody में से I will differentiate with respect to x then y, है ना. तो ये आपके हाथ में चॉइस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वाइस वर्सा है, जो यहाँ मानोगे उस हिसाब से यहाँ करेंगे, तो सेम चीज हो जाएगी वो तो. ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है. Yes sir. सर अब आपको fx, हमें मेनली ये चीज देखनी है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है. तो मुझे fx 0 प्लस के fx निकालना है. ठीक, तो पहले fx की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर fx की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे फंक्शन, हमें यहाँ पे क्या रखना है, fx में 0 कॉमा k रखना है, fx में नॉट f. तो ये तो आपका f था, पहले मुझे fx निकालना पड़ेगा यार. here I have to find firstly what is fx. तो fx means del f over del x. तो वो मैं किसका निकालूंगा, इस वाले केस का, जब नॉन जीरो है. जीरो पे तो जीरो है, तो नॉन जीरो पर ये है, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है. तो इसमें y फिक्स है लेकिन x फिक्स नहीं है. अगर तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ x x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे. देखो, है ना, मुझे इसका डेल एफ एक्स निकालना है. तो व्हाट इज द एफ एक्स ऑफ दिस, या तो इसे बाई पार्ट कर लीजिए. ठीक है, क्या करें, y को फिक्स कर, पहले हम क्या करते हैं, इसे प्रोडक्ट मान लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस. तो पहले x का किया तो x का 1, दिस एज इट इज, y फिक्स है तो y इंटू एफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर एफ एक्स वाई. देखो x y ये फंक्शन था. अब देखिए, इसका अगर मुझे एफ एक्स निकालना है तो मैंने बाई पार्ट करा, इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और इसे सेकंड. ठीक,
तो एफ एक्स किया तो वाई फिक्स रहेगा, एक्स का 1 दिस एज इट इज, देन प्लस एक्स एज इट इज वाई, और इसको फिर से किया। इसे आपको अब क्या करना होगा, सर इसे सर अगर इनकेस फ्रैक्शन सर यस सर, हाँ। डिनोमिनेटर वाला है फॉर्मूला। ना, फ्रैक्शन फॉर्मूला से जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, मैंने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, नीचे होल स्क्वायर आएगा, ऊपर कुछ कम, ये एफ एक्स की वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? सिमिलरली एफ वाई की वैल्यू आपकी फिर बाई पार्ट करेंगे, एफ वाई में एक्स फिक्स होगा आपके पास, तो ये फर्स्ट बन जाएगा आपके पास, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई। अब जब यहाँ पर आप करेंगे तो माइनस साइन और आएगा, क्योंकि सेकंड आपके पास ये है, तो ये माइनस साइन के साथ आएगी वैल्यू पर, माइनस एक्स वाई 4x स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ वाई की वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं इसे, ये सिंपल डेरिवेटिव, सर ये वाई पार्ट समझ में नहीं आ रहा सर, लाइक अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना ये, इट इज प्रोडक्ट हाँ ऑफ सर, टू लाइक फंक्शन। इसमें सर वाई के अंदर सर एक्स फंक्शन का भी सर ऑटोमेटिकली सर सेकंड पार्ट में हो रहा है, तो नहीं, वाई अगर तो खाली कांस्टेंट है, वाई वाई एफ होगा एक्स में सेकंड। वाई विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, अच्छा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो आपने फर्स्ट एक्स एज इट इज लिखा, वाई कांस्टेंट है, वाई एज इट इज लिख लिया, इसको किया हमने बाई पार्ट, बस ये जो फ्रैक्शन था, ये आ गया सर, आ गया ठीक है, आ सिर्फ गया सर, इसे आ गया। किया है। सेम थिंग हियर, एफ वाई में एक्स विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ठीक। तो नाउ आई विल गो बैक, सो योर वैल्यू एफ एक्स वाई 0 0, तो इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो इट वाज लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ एक्स 0 कॉमा के माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन के, ये वैल्यू थी ना। तो अब एफ एक्स 0 कॉमा के का, ये एफ एक्स है आपका, ये 0 कॉमा के मीन्स एक्स की जगह 0 एंड वाई की जगह के, तो जब आप एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखा, ये 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस के क्यूब अपॉन के स्क्वायर, कितना बचेगा, माइनस के। ये एफ एक्स 0 के का मतलब क्या हुआ, अब इसमें आपको रखना है वैल्यू उठा के इसकी, y की k और x की 0, तो रखो x की 0 रखोगे तो 0 प्रोडक्ट में सेकंड टर्म इज 0, पुट x 0 हियर, तो ये 0 हो गया, तो कितना है आपके पास, ये माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, कितना बचा, माइनस वाई मीन्स माइनस के, माइनस के। माइनस एफ एक्स 0 0 इट इज 0 अपॉन के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ रही है, ठीक। सिमिलरली आई विल फाइंड एफ वाई एक्स 0 0, एफ वाई एक्स में क्या लिया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एफ वाई h कॉमा 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन h, ये तो थी एफ वाई एक्स की वैल्यू, ये लिखी थी हमने, ये है ना। अब क्या करना है, एफ वाई में रखनी है, एफ वाई में x की जगह h, y की जगह 0, तो देखिए एफ वाई है, y की जगह आप 0 रखेंगे तो सेकंड टर्म विल बी 0 क्योंकि प्रोडक्ट है, यहाँ कितना बचेगा, एच क्यू अपॉन एच स्क्वायर, कितना बचा, h है ना, यहाँ पर y की प्लेस पे 0 है, x की प्लेस पे h है, एफ वाई में माइनस 0 अपॉन h, so how much it is coming +1, so your fxy 0 0 is not equal to fyx 0 0, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है, so it is the example where mixed derivative is not equal। बताए, क्लियर है ये? सर ये जो एफ एक्स है सर, इसका जो वो आया था, रिजल्ट आया था, उसमें 0 0 रखेंगे तो सर 0/0 फॉर्म आ रही है। नहीं, 0/0 नहीं आएगी, जब आप fx में ये जो आ रही है, ये नहीं सर, वो इससे पिछली जो स्लाइड थी उस पर जो था रिजल्ट, क्या एफ एक्स का जो आया था सर 4 करके कुछ। 4, हाँ सर यही वाला, क्या, ये जो एफ एक्स है ना सर सबसे ऊपर, हाँ ये, सर इसमें 0 0 रखेंगे तो सर तो 0/0 0 पे नहीं नहीं आएगी। रखेंगे ना, 0 पे तो वो ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है,
कि अदरवाइज जब भी 0 0 ये 0, ये डिफाइंड है ऑलरेडी फंक्शन इस तरीके से। यस सर, ये तो डिफाइन किया है ना इन्होंने। यस सर, अगर 0 पे डिफाइंड नहीं होता तब तो हमें मालूम ही नहीं होता 0 पे वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन उन्होंने अच्छा डिफाइन सर, करा है। इन्होंने ऑटोमेटिकली कंडीशन दे दिया, अगर 0 0 नहीं हुआ, 0 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो फिर वो 0 हाँ, रह जाएगा। ये प्रॉब्लम में गिवन है ऑलरेडी, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना कि 0 पे डिफाइन, उन्होंने मान लिया कि 0 पे 0 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये fx निकल आया। अब हमें यहाँ 0 0 पे नहीं चलना था, हमने यहाँ पे जो fx 0 0, आप ये कह रहे हैं ये fx 0 0 की वैल्यू मैंने 0 कैसे लिख दी, ये सोच रहे होंगे आप, है ना। यस सर, हाँ एग्जैक्टली सर। हाँ हाँ, तो वो fx 0 0 की वैल्यू एक्चुअली जब आप रखेंगे ना तो आप उसकी लिमिट निकालेंगे। तो fx 0 0 की वैल्यू ये थी, यहाँ पे मैं रुक गया था, देखो ये थी, है ना, थी नहीं थी, ये बताओ। यस सर। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू fx 0 0 की वैल्यू निकलेगी इससे। अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ बेसिकली आप देखेंगे कि एफ एच कॉमा 0 अपॉन एच, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू निकल कर आ रही होगी। इस पे अब हम लिमिट Yes, जब sir. टेंड कराएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब यहाँ पुट करोगे Yes. आप तो ये 0 आ जाएगा निकल के। तो सर एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ना कि उससे। हाँ, वहां से हमने fx निकाल लिया है, ठीक है। यस सर, लेकिन fx 0 0 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ये जो मैंने छोड़ा था इतना करके, यहाँ आप रख दीजिए, y को 0 रख दीजिए, ठीक है, रखिए y s को ये रख दीजिए, टेंडिंग टू 0, s से s कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। यस सर, अब समझ आ गया सर। हाँ, यस सर, आगे सर। और ये जो हमने fx निकाला था ये किसके लिए निकाला था, ये इस वैल्यू के लिए, ये जो थी, है ना, इसकी भी जरूरत पड़ी हमें, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, इसे सॉल्व करने के लिए। ये जो था, दो पार्ट थे इसमें, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। चलो तो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब वही जो आप टोटल डिफरेंशियल पढ़ा करते थे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो फंक्शन ऑफ वाई एक्स में आपने यू हैव स्टडीड कि इफ यू हैव वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डायरेक्ट यू कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये तो करते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया आपने, एफ डैश एक्स निकल आया, है ना। तो बेसिकली क्या होता था, बिकॉज हियर यू हैव अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, so because only one independent variable there, one dependent variable there, I can find it easily. But this concept I cannot apply when you have function of two variables. Two में मैं ऐसे नहीं कर सकता dz over dx if you have a function of fxy, so I cannot find dz over dx. तो उसमें क्या होगा कि इसी डेफिनेशन को जो हमने ऐसे डिफाइन किया था, इसको दोबारा देखते हैं कि ये बेसिकली था क्या। बेसिकली इफ यू रिमेम्बर कि ये जो आपका आइडिया था ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स देता क्या है बेसिकली, ये आपको चेंज देता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो होता है ना। Yes, डी वाई sir. बाई डी एक्स क्या चेंज होता है ये बेसिकली, कि इफ यू हैव सम फंक्शन तो डी वाई बाई डी एक्स इज द चेंज इन द फंक्शन ऑफ वाई व्हेन एक्स इज चेंजिंग, है ना। इसका मतलब ये कि अगर मैंने x से x को चेंज करके सम x प्लस डी एक्स करा, तो जो फंक्शन y था, y में क्या चेंज हो रहा है ना, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, कुछ डी वाई होगा या क्या होगा, ये होता है। So this is actually, this I can consider as an increment. Okay, if some increment or decrement is happening in the x, what increment or decrement will happening in the y? Derivative का concept आपको यही बताता है। Okay, so now defining differentiability for function of two variable, I will use this increment definition, not this definition. सर Yes. सर 5 मिनट्स ही बची हैं सर मीटिंग एंड होने में, सर ये टॉपिक 5 मिनट्स में हो जाएगा सर ये? 5 का यार मेरे तो 2 ही दिखा रहा है। अच्छा सर, पता सर। तो मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, फिर कल Yeah. कंटिन्यू करूंगा इसको, है ना। फिर ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी सर। हाँ, ये आप कहें तो अभी की दोबारा क्लास शुरू कर दें कट करके, सर कर सकते हैं सर, अच्छा अगर फ्री है आपकी क्लास तो। क्यों भाई, फिजिक्स वाले और क्लास है इसके बाद। नो सर, अभी क्लास है है ना सर। इसके बाद? क्लास सर है? इंग्लिश की क्लास। अच्छा चलो तो सर ठीक कर दीजिए आप सर। नो क्या? सर। है, नहीं सर, हाँ सर, सर क्लास आज है हम इंग्लिश लोग की क्लास है सर। सर मुझे भी याद आया सर, 10:30 चलो ठीक है, तो इसे इंग्लिश हम की क्लास। कंटिन्यू कर लेंगे, कल कंटिन्यू कर लेंगे इसे।
Yes, sir. डिफरेंशिएबिलिटी को, ठीक है। टुमारो आई विल स्टार्ट। तो आई वाज जस्ट गिविंग यू द आइडिया, कल स्टूडेंट को आज हो सकता है कोई ना हो, कि यहाँ पर जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ यूजिंग दिस डेफिनेशन आई विल यूज द इंक्रीमेंट डेफिनेशन, क्योंकि जो डिफरेंशिएबिलिटी आपकी है ये बेसिकली आपको इंक्रीमेंट का आइडिया भी देती है ना। तो इसका जो इंक्रीमेंट वाला आइडिया था, इस डेफिनेशन से मैं टोटल डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करूंगा z की, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, ठीक है। आई विल नॉट टेक dz ओवर dx, क्योंकि dz ओवर dx तो हम ले नहीं सकते यहाँ पे, तो ये डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, हम दूसरी डेफिनेशन लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो आपकी थ्योरम है इंक्रीमेंट थ्योरम। ओके, तो इसको आई एम ओके स्टॉपिंग सर, थैंक यू। हाँ, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। चलिए फिर। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Okay, thank you.